सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। सो मैं भी बढ़िया हूँ। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बने रहें। सो इंट्रो तो अपना ऐसा ही होगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पहले बता देता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कितनी बार बोलूँ। सो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? दैट इज ऑलरेडी स्टडी अबाउट दैट all topics which are in resistance. Now at that time or in this video we will start a new and very different topic about than the previous topics. So that is battery or cell, and we will discuss about some combination of cells like as the combination of resistances. So first we have to know about the battery and the cell. What is battery or cells? So definition, we also know that we are seeing in our at our house we see that remote control, जो remote control cells, and there is a wrist watch, so hand watch cell, and wall watch cell. So there are many uses of cells. So now in this video we will discuss about the cells and what is a cell. So cell is a instrument which convert chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. So in physics we have to study about the cells that are electrochemical cells. So we do not about know about that in that physics. There is no need to know about the parts of cells. We have only know about battery or cell. So the definition is, so the next topic is that battery or cell. Battery and cell is an equipment or instrument which convert into electrical energy. Here we read only about the electrical energy conversion. So we read the definition, chemical energy into electrical energy. There a as well as like as electrical energy convert into chemical energy. So those are the electrolytic cell. Here we study about electrochemical cell. So there is no need to know about that electrochemical cell. We have to know about that only what is battery or cell. Now we study about three terms which are useful in battery or cell. So that are EMF, second terminal voltage, third is internal resistance. So ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको पता होगी या फिर नहीं पता होगी, अब पता लग जाएगी आपको. So please listen me carefully. So what is EMF? So EMF पहले तो इसका जो साइंटिफिक जो इसकी डेफिनेशन वो करेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे. व्हाट अबाउट द ईएमएफ? सो ईएमएफ क्या होता है? इसका जो इसकी जो फुल नेम है वो है इलेक्ट्रोमोटिव force. So electromotive force is known EMF. So what is its definition? So definition क्या होगी? When cell is in open circuit, then the potential difference across the terminal of the cells is called EMF. कि जब भी कोई बैटरी है वो ओपन सर्किट होगी, वो कोई भी सर्किट है ओपन सर्किट है वो, अगर उसमें इफ एनी सेल, अब कोई भी सेल है वो ओपन सर्किट में, जैसे एक वायर तो हमने उसका कनेक्ट कर दिया बैटरी से, एक नहीं किया, तो एक वायर कनेक्टेड एक नहीं है तो वो ओपन सर्किट हो गया. सो जब उस
वायर में वो सर्किट है वो ओपन होगा तो उसमें जो वोल्टेज होगी उस सेल की उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जब हम किसी भी सेल को हम परचेज करते हैं तो जब वो सेल है वो सर्किट में नहीं होता तब तक जो उसका वोल्टेज होता है उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ ईएमएफ, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज व्हेन हम उस सर्किट को ओपन क्लोज कर देते हैं या फिर उस सेल को हम इन सर्किट में जोड़ देते हैं तो जो उसका वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो इसको हम साइंस के हिसाब से जो डेफिनेशन बनाई हुई है व्हेन any circuit is open circuit then the potential across the terminal of cells is called terminal voltage। now हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, कोई भी सेल है या कोई बैटरी उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सो तभी तो EMF एंड वोल्टेज ये बोथ आर सेम फॉर सेम थिंग्स बट दे बोथ आर डिफरेंट, दे equal only when the resistance is zero, internal resistance, and when they are in open circuit। so open circuit में होंगे दोनों सेम होंगे इक्वल होंगे एंड रेजिस्टेंस जीरो होगा तो ये इक्वल हो सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस जब ये बैटरी होती है बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट को अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो हमने देखा है टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज ओपन सर्किट में क्लोज सर्किट में होता है तो इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज इससे कम आएगी व्हेन द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। अब यहाँ पर फॉर्मूले देखते हैं जब, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं V वोल्ट। सो अभी आ रहा है किसी भी बैटरी का ये अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब अंतरीय जो रेजिस्टेंस होता है किसी बैटरी का वो उसके अंदर होता है। इसको इसकी डेफिनेशन होगी इंडेंस इन फ्लो ऑफ आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए बैटरी और सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आपको पता होगा या नहीं पता पर मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जब भी डेफिनेशन बनी केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो हर एक सेल में केमिकल होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है। सो वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। अब हम ले लेते हैं पीपी स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल ले लेते हैं, पीपी स्टोरेज सेल ले लेते हैं। वो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। देन इन मर्करी और ड्राई सेल्स में जो वॉल वॉच के जो सेल होते हैं रिमोट के जो सेल उनमें जो सेल होता है वो होता है इन सॉलिड नेचर, सेल सॉलिड स्टेट में होता है। अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये हो गया। अब जब हम किसी भी बैटरी या सेल को डिस्चार्ज, अब यहाँ पर मैं बैटरी ले लेता हूँ। अब किसी भी बैटरी को हम डिस्चार्जिंग में लाते हैं, अब वो बैटरी और सेल में आप डिफरेंस बता दूँ मैं आपको। अब हमने यहाँ पर दो ही टर्मिनल लिए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो टर्मिनल लिए हैं तो ये होगी एक सेल। व्हेन वी टेक मोर सेल्स तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, समझ गए। अगर आप यहाँ पर 4 5 6 7 अगर हम यहाँ पर टर्मिनल ले लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ले लेते तो वो एक बैटरी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सेल है तो इस सेल को हम देखते हैं। अब यहाँ से जब ये सेल डिस्चार्जिंग होगा तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पर डिस्चार्जिंग होती है तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो होगा यहाँ पर V इज इक्वल टू E माइनस IR। सो ये होगा इसका टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं, हमें सीधा फॉर्मूला, देयर इज नो नीड ऑफ द डेरिवेशन। अगर यही बात अगर चार्जिंग में आ जाए तो चार्जिंग में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। अब आप समझ सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग चलाया है तो ये माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों होगा व्हेन V है, E है, E क्या है, EMF मतलब जो वोल्टेज उस टाइम होगा जब करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट में होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा तो E और V इक्वल होंगे। अब E और V इक्वल कब होंगे कि जो V है E है, E में I करंट फ्लो के कारण जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या जो भी करंट डिस्ट्रॉय हुआ है उसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वही तो V की इक्वल होगा। क्योंकि अब V हमारा 10 है और करंट फ्लो हो गया, कुछ भी करंट फ्लो हो गया तो उस करंट को फ्लो हो गया, वो करंट फ्लो हुआ है कम हुआ है E से
उस करंट से वोल्टेज क्रिएट हुआ, तो वो वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज माइनस उस करंट से होने वाले वोल्टेज का जो नेगेटिव एडिशन होगा उसी को हम बोलते हैं V। और यहाँ पर एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पर जब हम चार्जिंग में लेंगे तो हम एक्सटर्नल चार्ज ले रहे हैं, तो जो E के जो V है यहाँ पर V ग्रेटर देन E होगा, यहाँ पर V smaller than E और यहाँ पर V is greater than E because here we get more charge from the external circuit and here the destroying। so अब हम देखते हैं फॉर्मूला इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जल्दी से वीडियो में मजे से बने रहें एंड इस का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं क्या होगा। सो व्हाट इज अबाउट वी हियर वी स्टडी अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला। सो फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करना होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता है, वी डिनोट इंटरनल रेजिस्टेंस बाय स्मॉल आर, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। सो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर दैट द रेजिस्टेंस व्हिच क्रिएट द हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनी सेल और बैटरी। सो मतलब इलेक्ट्रॉन या आयन को फ्लो होने में जो हिंड्रेंस मतलब बाधा उत्पन्न करता है उस कोई हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ फॉर्मूला क्या, अब यहाँ पर हमें असम्पशन करनी होगी कि E तो EMF है। अब लेट अस अज्यूम लिखूंगा, इससे बढ़िया मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पहले लिख देते हैं लेट अस अज्यूम, ये तो लिख देते हैं लेट अस अज्यूम EMF V वोल्ट, V है यहाँ पर हमें टर्मिनल वोल्टेज, I करंट फ्लो हो रहा है, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पर किसकी नीड होगी, इसकी नीड होगी बिकॉज वी नो दैट। और यहाँ पर हम जो सर्किट, यहाँ पर इस सर्किट से बता देता हूँ मैं आपको क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव एंड हियर वी टेक सो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर लेना है। अब वहां पर लेता है एक ही बात है, पर यहाँ पर हम R स्मॉल r V और I करंट यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो देन I यहाँ पर होगा एंड V ले लेते हैं E। अब एक क्लोज सर्किट नहीं है, अब जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो V हो जाएगा, ओपन कर देंगे तो E और I हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक की ले लेते हैं, E की ले लेते हैं। अब ये ओपन की हो गई तो हम यहाँ पर V ले लेते हैं। तो V क्या होगा, V की वैल्यू क्या होगी E IR। यहाँ पर डिस्चार्जिंग ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो E माइनस IR। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, R की, तो R हमें यहाँ पर लेंगे IR इज इक्वल टू E माइनस V। सो R हमने यहाँ पर कॉमन ये लिया है V अपॉन I। अब हमें पता है V क्या है, I क्या है, V अपॉन R। सो यहाँ पर I के वैल्यू पुट करो एंड फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा ड्राइव होके। हमें ये क्या पुट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें जो गिवन है उनके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है V और R के रिस्पेक्ट में। I हमें नहीं गिवन होगा, हमें ये गिवन होगा E एंड V, और हमें R गिवन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं E माइनस V अपॉन R। सो व्हेन इट गोज इन न्यूमरेटर देन इट इज इन द प्रोडक्ट। सो फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होके आया है यहाँ पर, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द होल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये होगा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 फॉर्मूले आ चुके हैं, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू, और अगले वीडियो के लिए कल के लिए इंतजार करना होगा। सो